therapy in post-communist regime, the collapse of communism was followed in most of these countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. First, it was authoritarian, सिंगल रूल था एंड ऐसा सिस्टम था, सोशलिस्ट सिस्टम था जिसमें कि पावर इन सम हैंड्स ओनली, टू अ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, और दैट वाज अ कैपिटलिस्ट सिस्टम, मनी इन प्राइवेट हैंड्स. That was a transition, change was there. The model of transition in Russia, Central Asia, and Eastern Europe that was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as shock therapy. ये जो मॉडल था ट्रांजिशन का, that was named as shock therapy. Shock therapy, it varied in intensity and speed amongst the former Second World countries, but its direction and features were quite similar. Here in the diagram, you just see Russia and the nearby continent countries and Belarus, Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Armenia. They were for before the post-communist regime. It was included in USSR, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan. These all are Tajikistan, Kyrgyzstan. These all are included in the Russia. So they have been liberated by US by the disintegration of USSR. Now each of these countries was required to make a total shift to a capitalist economy. Economy was totally shifted, capitalist हो गई थी. Capitalist means कि the money in the private hands, not it was not a community property, rooting out completely any structures evolved during the Soviet period. यूएसएसआर जब इंटीग्रेटेड था, इंटीग्रेटेड यूएसएसआर था, इकट्ठा था यूएसएसआर, पूरी कंट्रीज उसमें वो इकट्ठी थी, they were working together, then the structure was different and that system was uprooted, वो हटा दिया गया, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया. Then the different structure evolved. It means that the private ownership was to be the dominant pattern of ownership or of property. Property वो वो जो पीपल हैं, दे ओन द प्रॉपर्टी, देयर ओनरशिप अराइजर्स. प्राइवेटाइजेशन, जो स्टेट के जितने भी एसेट्स थे उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, गवर्नमेंट के हैंड में नहीं रहा. कॉरपोरेट ownership patterns were to be immediately brought in. अब corporate ownership बन गई, मतलब peoples they are involved in the ownership of that thing. Collective farms were to be replaced by the private farming. पहले communes होते थे, collective farms होते थे, वो उसकी जगह अब किसने ले लिया, प्राइवेट फार्मिंग. अब प्राइवेट फार्म लैंड्स बनने लगे और एग्रीकल्चर में भी कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस होगी. दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी अल्टरनेट और थर्ड वे अदर देन द स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म और कैपिटलिज्म. जो दो मेन विचारधाराएं रह गई, जैसे कि जो सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, कोई तीसरा वे जो था दैट वाज रूल्ड आउट. नाउ दिस वाज now shock therapy. It also involved a drastic change in the external orientation of these economics. What happens कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव आया, और इन आर्थिकी के क्षेत्रों में डेवलपमेंट वाज नाउ envisaged through more trade. Thus, a sudden and complete switch to free trade was considered essential. अब प्रगति जो थी वो उसका मायने था कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार वो कैसा होना चाहिए, फ्री ट्रेड. प्राइवेट जो ऑनर्स हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, वो फ्री ट्रेड कर सकें. फ्री ट्रेड रेजीम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकें यहाँ इन कंट्रीज़ में. फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई कहा गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर टू बी द मेन इंजन्स ऑफ चेंज. ये जो थे ये बदलाव के बहुत बड़े कारक थे. दिस आल्सो इन्वॉल्व ओपनिंग
टू अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब जो बाहर की यूनाइटेड स्टेट्स की या यूरोपियन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने कारखाने यहाँ पर रशिया में खोल सकते थे, वो अपना पैसा लगा सकते थे यहाँ पर, or more or foreign investment is open now. The financial opening up or deregulation and currency convertibility, अब जो रशिया की जो करेंसी है और उससे फ्रांस की करेंसी में कन्वर्ट करना, और डॉलर से रशियन रूबल्स में कन्वर्ट करना, तो वो सब भी ज़रूरी हो गया, रेगुलेट करना इज मोर नेसेसरी, अब फाइनेंशियल ओपनिंग होगी. Finally, the transition also involved a breakup of existing trade alliances amongst the countries of the Soviet bloc. जो सोवियत ब्लॉक था, सोवियत ब्लॉक के साथ जो कंट्रीज थी वो ये फोकस करते थे कि उनका फोकस रहता था कि मेनली ट्रेड जो है उनके बीच ही हो. बट नाउ उनके बीच का जो ट्रेड की जो अलाइंसेस थी, संधियाँ थी, वो ब्रेकअप हो गई. अब ये trade was possible to other countries also, other other United States and other European countries, they are involved in the trade with the Soviet bloc countries. Each state from this bloc was now linked directly to the west, पश्चिम से वो linked हो गए directly, and these states were thus to be gradually absorbed into the western economic system. पश्चिमी जो आर्थिक जो सिस्टम था उसमें ये absorbed हो गए और पश्चिमीकरण हो गया, वेस्टर्नाइजेशन कह सकते हैं आप. वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट नाउ बिकेम द लीडर एंड दस गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन्स थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन. वेस्टर्न जो कैपिटलिज्म है उसने अपना कंट्रोल कर लिया था रशिया पर, और वो अपनी कई एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन को वो इन्वॉल्व कर रहा था कि यहाँ रशिया में डेवलपमेंट हो. और इन जो सोवियत ब्लॉक वाली कंट्रीज हैं दे वर गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय देम. तो दिस इज शॉक थेरेपी, दिस इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम one phase to another. And then the consequences of shock therapy we'll study. The shock therapy administered in the 1990s didn't lead the people into the promised utopia of mass consumption. मास कंजम्पशन मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो उपभोक्ता हैं वो जो मार्केट पे अपना कंट्रोल कर सकें, वो एक लोगों में लोगों के विचार था कि ऐसा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि मास कंज्यूमरिज्म शुरू होएगी, लोग उपभोग कर सकेंगे, मोर एंड मोर मनी इंट्रोड्यूस होगी. बट ऐसा नहीं हुआ. और इतना ज़्यादा जो प्रॉमिस्ड यूटोपिया था कि भाई ऐसा होगा, दैट वुडंट हैपन. इट ब्रॉट ruin टू द इकोनॉमीज एंड द डिज़ास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द इंटायर रीजन. जो वहाँ का जो पूरा जो क्षेत्र था उसकी इकोनॉमी आर्थिकी थी वो पूरी तरह तहस नहस हो गई थी. वहाँ पर जो लोग थे वो दे आर फेसिंग डिज़ास्ट्रस डेंजरस जो circumstances फेस कर रहे थे. In Russia, the large state controlled industrial complex almost collapsed. जितने भी जो इंडस्ट्रियल उद्योग कॉम्प्लेक्स थे वो सारे जिन जिन पर किसका कंट्रोल था, गवर्नमेंट का कंट्रोल था, स्टेट का कंट्रोल था, वो सब ख़त्म हो चुके थे. नाउ अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल. 90% जो इंडस्ट्रीज थी वो सेल के लिए ओपन कर दी गई थी, बेचने के लिए. किसको? प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज को. सिंस द रिस्ट्रक्चरिंग वाज कैरिड आउट थ्रू मार्केट फोर्सेस एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज. गवर्नमेंट ने कोई उद्योगों के लिए कोई नीति नहीं बनाई थी, कोई पॉलिसीज नहीं बनाई थी. तो ये जो चेंज था, रिस्ट्रक्चरिंग, जो बदलाव आ रहा था स्ट्रक्चर में, ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड करी थी. मार्केट बाजार की जो जो पीपल, बाजार में जो पीपल थे, बाजार में जो मार्केट में जो लोग इन्वॉल्व थे वो डिसाइड कर रहे थे. नॉट गवर्नमेंट वाज डिसाइडिंग. इट लेड टू द वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ एंटायर इंडस्ट्रीज. पूरे के पूरे उद्योग खत्म हो गए. दिस वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री. ये सबसे बड़ी गैरेज सेल इन हिस्ट्री कहलाई जाती है. एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड. बड़ी बड़ी जो बड़े ज़्यादा जो कि ऐसे उद्योग थे जो बहुत
कीमती थे, जो बहुत जिनकी बहुत प्रेस्टीज थी, मतलब उनका सम्मान था बाहर मार्केट में, वो सब एकदम उनका वैल्यू ख़त्म होगी। एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइजेस, और वो मुंह मांगे दामों पर उनको लोगों ने खरीद लिया। दो ऑल सिटीजन्स वर गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट इन द सेल, most citizens sold their vouchers in the black market because they needed the money. लोगों को क्या चाहिए था? मनी, पैसा चाहिए था। इसलिए उन्होंने अपने जो उनको वाउचर्स मिले थे सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन्होंने वो बेच दिया और ब्लैक मार्केट में, और से मनी ले ली। और इस तरह से देख रहे हैं तो एक कॉलेप्स हो गया था इंडस्ट्रियल